السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ BBN چینل کے بلیٹن ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ غزہ جنگ کے دوران درجنوں مساجد کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے مسجد میں داخل ہو کر یہودیوں کی دعائیں پڑھی، مسلمانوں میں غم و غصہ۔ جنگ سے بے گھر ہونے والے غزہ کے شہریوں کے لیے مصیبت بنی طوفانی بارش، وبائی امراض تیزی سے پھیلنے کا اندیشہ، انسانی بنیادوں پر امداد کی سختی سے ہے ضرورت۔ غزہ اور فلسطینیوں کے حق کے لیے مسلسل لڑتے رہنے کا آسٹریلیائی کرکٹر عثمان خواجہ کا اعلان۔ ICC سے ٹکر لینے والے عثمان خواجہ نے کہا، میری لڑائی سیاسی نہیں، انسانی ہمدردی کے لیے ہے۔ BJP کے CM ہیمنت بسوا کی سرکار کا فوری اثر کے ساتھ حکم، آسام میں قریب 1300 مدرسوں کو مڈل انگلش اسکولوں میں کر دیا گیا تبدیل۔ مدھیہ پردیش میں لاؤڈ سپیکر کے بعد سڑکوں پر گوشت کی دکانوں کے خلاف کارروائی کا اعلان، گشت لگا کر پولیس اہلکاروں نے کیا خبردار، مذہبی عبادت گاہوں کے قریب نہ لگائی جائیں گوشت کی دکانیں۔ اور پارلیمنٹ سیکیورٹی میں غلطی کے خلاف احتجاج کر رہے 14 اپوزیشن MPs کو کر دیا گیا سسپینڈ۔ سپریا شرنیتے نے کہا، جس BJP لیڈر نے دیا پاس اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، کیونکہ بزدل تاناشاہ سوالوں سے ڈرتا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے غزہ میں مسجد کی بے حرمتی پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کی داستانیں طویل ہوتی جا رہی ہیں، تو وہیں مساجد کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر کا مذاق بھی یہ صہیونی اڑا رہے ہیں۔ مسجد جنین میں اسرائیلی فوج نے داخل ہو کر بے حرمتی کی اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا۔ آن لائن وائرل ہونے والی فوٹیج میں اسرائیلی فوج کے افسران کو ایک مقامی مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر یہودیوں کی دعائیں گنگناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس نے مسلمانوں میں غم و غصے کو جنم دیا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے۔ پورے محلے ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ قابض فوج نے کئی مقامات پر ٹینکوں اور بلڈوزروں کی مدد سے قبریں بھی رون ڈالی اور بربریت کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت سے غزہ میں انسان، حیوان، درخت، چرند پرند بھی محفوظ نہیں۔ صہیونی فوج نے تباہی کا ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے الزیتون کالونی میں قبرستان کی قبریں اکھاڑ پھینکی ہیں، قبرستانوں سے لاشیں نکال پھینکی اور قبروں کا نام بھی وہ نشان بھی مٹا دیا ہے۔ اسرائیل کے بلڈوزروں نے غزہ شہر کے شمال میں جبالیہ کے علاقے میں قبروں کو اکھاڑ پھینکا اور الزیتون میں بھی قبرستان بھی ملیا میٹ کر دیا ہے۔ غزہ میں جاری بارشوں کے بعد جنگ سے متاثرہ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد بے گھر ہونے والے غزہ کے ہزاروں فلسطینی خاندان عارضی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ میں بے گھر افراد کے خیموں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی طوفانی بارش نے خیموں میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو مزید امتحان میں ڈال دیا۔ عارضی کیمپوں میں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ افراد موجود ہیں اور پھر سیوریج کا نظام یعنی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے وبائی امراض تیزی سے پھیلنے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔
القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کل جمعرات کی شام اس بات کی تصدیق کی ہے کہ القسام کے جنگجوؤں نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران 72 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ القسام مجاہدین 36 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے، درجنوں دیگر صہیونی فوجیوں کو زخمی کرنے کے ساتھ ان میں سے بعض کا ساز و سامان اور ہتھیار چھین لینے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجاہدین یعنی القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے غاضب صہیونی افواج کو میزائلوں اور اینٹی قلعہ بندی ایکوپمنٹ سے نشانہ بنایا، ان کے ساتھ .0 کے فاصلے سے جھڑپیں کی اور ان کی ریسکیو ٹیموں کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے شہری اموات کو کم کرنے کے امریکی مطالبات کا مذاق اڑایا ہے۔ بیروت میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ واشنگٹن میں اپنے سفیر کو سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کرنے سے روکنے کی ہدایت کرے۔ حمدان نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے شہری ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے مسلسل کالز کرنا ہمارے لوگوں کے خون کی صریحاً بے توقیری اور بے عزتی کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان غزہ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر پوتن نے دارالحکومت ماسکو میں ایک پریس کانفرنس خطاب میں 2024 میں دورہ ترکیہ کی توقع ظاہر کی اور کہا کہ غزہ کے لیے صدر رجب طیب ایردوان کی کوششیں قائدانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایردوان بین الاقوامی برادری کے ایسے لیڈروں میں سے ایک ہیں جو غزہ کے المیہ کی طرف توجہ مبذول کروانے، وہاں کے حالات کو بہتر بنانے اور طویل المدت امن کی ضامن شرائط تشکیل دینے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں۔ آسٹریلیائی کرکٹر عثمان خواجہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں تحریری جملے والے جوتے پہننے کی منظوری حاصل کرنے تک ICC سے ان کی لڑائی جاری رہے گی۔ آسٹریلیائی کرکٹر عثمان خواجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کی گورننگ باڈی کے اس حکم کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت انہیں بے آوازوں کی آواز بلند کرنے کی حمایت والے میسج کو ظاہر کرنے سے روک دیا گیا۔ آسٹریلیا کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے پاکستانی نژاد پہلے مسلم کرکٹر عثمان خواجہ نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی ویڈیو پوسٹ کر کے واضح کیا کہ ان کا میسج سیاسی نہیں تھا۔ بتا دیں کہ عثمان خواجہ نے فلسطینیوں کے حق میں تحریر والے جوتے پہنے تھے جس پر ICC کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے۔ I won't say much. I don't need to. But what I do want is for everyone who did get offended somehow is to ask yourself these questions. Is freedom not for everyone? Are all lives not equal? To me personally, it doesn't matter what race, religion, or culture you are. But let's be honest about it. If me saying all lives are equal has resulted in people being offended to the point where they're calling me up and telling me off, well, isn't that the bigger problem? These people obviously don't believe in what I've written. And it's not just a handful of people. You'd be shocked about how many feel this way. What I've written on my shoes isn't political. I'm not taking sides. Human life to me is equal. One Jewish life is equal to one Muslim life, is equal to one Hindu life, and so on. I'm just speaking up for those who don't have a voice. This is close to my heart. When I see thousands of innocent children dying without any repercussions or remorse, I imagine my two girls. What if this was them? No one chooses where they're born. And then I see the world turn their backs on them. My heart can't take it. I already feel my life wasn't equal to others when I was growing up. But luckily for me, I never lived in a world where that lack of inequality was life or death. The ICC have told me that I can't wear my shoes on field
because they believe it's a political statement under their guidelines. I don't believe it is so. It's a humanitarian appeal. I will respect their view and decision, but I will fight it and seek to gain approval. Freedom is a human right. ब्रिटेन ने इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। ब्रिटिश खारजा सेक्रेटरी डेविड कैमरोन ने कहा है कि इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के ब्रिटेन में दाखिले पर बैन लगा दिया गया है और इसराइल को आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दाम करना ही होंगे। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने मकबूजा मगरब किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों के ज़िम्मेदार इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के खिलाफ इक़दाम की हिमायत की है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने यूरोपीय यूनियन के कानून साजों को बताया कि मैं मगरबी किनारे में हमलों में मुलव्विस अफराद को सज़ा देने के हक़ में हूँ। उनका एहतसाब होना चाहिए। इस तशद्दुद का हमास के खिलाफ लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसे रोकना चाहिए। खांसी की शिकायत ने शहरियों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी की गई है। फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में खांसी की वबा में 250% इजाफा देखने में आया है। बरतानवी हुकाम की जानिब से शहरियों को क्रिसमस पर मास्क पहनने की हिदायत की गई है। लंदन में 100 रोज़ तक जारी रहने वाली खांसी की वबा फैल गई है जो पसलियों को मुतासर कर सकती है। शहरी बदएहतियाती के बाज़ तेज़ी से इसमें मुब्तला हो रहे हैं। बरतानवी डॉक्टर्स का कहना है कि 100 दिनों की खांसी से दौरे पड़ने का भी खतरा है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने और क्रिसमस पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत की है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बीजेपी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आसाम में तकरीबन 1300 मिडल इंग्लिश मदरसों को फौरी असर से आम मिडल इंग्लिश यानी ME स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। रियासत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामे में ये इत्तला दी गई है। ME मदरसे अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम मुहैया कराते हैं। महकमा तालीम के डायरेक्टर सुरंजना सेनापति की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया है कि इब्तदाई तालीमी डायरेक्टोरेट के तहत आसाम में 1281 हायर एजुकेशन ME मदरसों को फौरी असर से ME स्कूल के तौर पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बन गई है। नई हुकूमत आने के फौरी बाद जहां लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त हिदायतें दी गई हैं, तो वहीं आज खुले में और सड़कों किनारे गोश्त और मछली की दुकानों के लिए भी नया हुक्म जारी किया गया। पुलिस एहलकार सड़कों पर घूमकर दुकान मालिकान को हिदायतें दे रहे हैं, तो वहीं स्पीकर के जरिए गश्त लगाकर सरेआम ऐलान किया जा रहा है कि मजहबी इबादत गाहों के करीब गोश्त की दुकानें ना लगाई जाएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपारदर्शी कांच या अन्य किसी वस्तु या संसाधन से ढककर रखे, खुले में न रखे। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह की मांस मछली की दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। मांस मछली के विक्रय में साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। खुले में मांस बिके। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी गलती पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मोदी सरकार से जवाब मांगने की पुरजोर अपील के बाद जहां करीब 14 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, वहीं आज भी पार्लियामेंट में इस मामले पर काफ़ी हंगामा रहा। सस्पेंड किए गए MPs ने गांधी जी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया।
इस दौरान कांग्रेस पार्लिमानी ग्रुप की सदर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में धरना दे रहे सस्पेंड एमपी से मिलकर उनकी हिमायत की। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ऐवान के लीडर हैं, उनका ऐवान में आकर बयान देना चाहिए था और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमें निकाल दिया जा रहा है। बहिष्कार हो गए। आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया और ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का कौन किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगी। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने अपोजिशन लीडरों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर देने पर कहा कि जिस बीजेपी एमपी ने मुलजमीन को एंट्री पास दिया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि बुज़दिल तानाशाह सवालों से डरता है। कल देश के सदन में सुरक्षा की भारी चूक हुई और सबको लगा कि इसको गंभीरता से लेकर सरकार आएगी सामने और एक वक्तव्य देगी कि ऐसी सेंधमारी हुई कैसे। सरकार लोगों को भरोसे में लेगी, उनको ये आश्वासन देगी कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, यहां विचित्र ही, यहां उल्टी ही गंगा बह रही है। यहां 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिसमें से 9 कांग्रेस के थे। उनका क्या गुनाह था? उनका यह गुनाह था कि वो पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आखिर जिस जगह परिंदा नहीं जा सकता, जहां पर फोन लेकर कोई नहीं जा सकता, वहां लोग कैन लेकर कैसे घुस गए और सदन को धुएं से कैसे भर दिया। और खेल सुनिए कितना गजब हो रहा है, कितना विचित्र है। एक बेचारे सांसद महोदय तमिलनाडु से हैं, वो सदन में तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में भी नहीं थे, उनका भी निलंबन कर दिया गया। मतलब किस बुद्धि के ये लोग हैं, ये यही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन जिस सांसद के चलते ये लोग अंदर आए, जिसने उनके प्रवेश पासेस बनवाए, जिसने सिफारिश करी, हस्ताक्षर किए, प्रताप सिम्हा, मैसूरू का भाजपा का सांसद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई निलंबन नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं, बिल्कुल आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का काम हुआ है। पर निलंबन पहली बार तो हुआ नहीं है, निलंबन तो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दिया गया था, राज्यसभा से भी बड़े बड़े नेताओं का निलंबन हुआ था। 176% बढ़ गया निलंबन मोदी जी की नाक के नीचे जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साहब को ना सवाल नहीं पसंद है। सवाल पूछने वाले उनका टाइम बर्बाद करते हैं। सवाल पूछने वालों के लिए संसद में कोई जगह नहीं है। सवाल पूछने वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये उस कायर तानाशाह का डर दिखाता है जो भागा भागा फिरता है, लेकिन देश के सामने आकर देश को यह भरोसा नहीं दिलाता कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि स्थिति संभली हुई है, कि सुरक्षा की चिंता करने की कोई जगह नहीं है। अगर वो घबराता नहीं तो 15 सांसदों को निलंबित नहीं करता। निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सवाल से घबराए घबराए भागे फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि म्यूनसिपल ओहदेदारों ने एक गरीब सब्जी बेचने वाले के ठेले पर बुलडोज़र चढ़ा दिया। इस दौरान ठेले वाले को जज्बाती अंदाज में ऐसा न करने की अपील करते और फिर बाद में ज़ारो कतार रोते हुए दिखाया गया है।
मेरी चोरी है तू कितना बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा जंग के दौरान दर्जनों मसाजिद को शहीद करने के बाद इस्राएली फौजियों ने मस्जिद में दाखिल होकर यहूदियों की दुआएं पढ़ी, मुसलमानों में गम व गुस्सा। जंग से बेघर होने वाले गजा के शहरियों के लिए मुसीबत बनी तूफानी बारिश, वबाई अमराज तेजी से फैलने का अंदेशा, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की सख्ती से है जरूरत। गजा और फलस्तीनियों के हक के लिए मुसलसल लड़ते रहने का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का ऐलान। आईसीसी से टक्कर लेने वाले उस्मान ख्वाजा ने कहा, मेरी लड़ाई सियासी नहीं, इंसानी हमदर्दी के लिए है। बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा की सरकार का फौरी असर के साथ हुक्म, आसाम में करीब 1300 मदरसों को मिडिल इंग्लिश स्कूलों में कर दिया गया तब्दील। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर के बाद सड़कों पर गोश्त की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, गश्त लगाकर पुलिस एहलकारों ने किया खबरदार, मजहबी इबादत गाहों के करीब न लगाई जाएं गोश्त की दुकानें। और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में गलती के खिलाफ एहतजाज कर रहे 14 अपोजिशन एमपीज को कर दिया गया सस्पेंड। सुप्रिया शुरनेते ने कहा, जिस बीजेपी लीडर ने दिया पास उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि बुज़दिल तानाशाह सवालों से डरता है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।